Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, guys. Welcome back. Okay, so in the previous lecture I left you guys at the definition of stationary waves. Okay, I told you what stationary wave is and how it is formed. Now guys, we are gonna look at a few formulas which are actually tested on stationary waves, different formulas which are tested in the past papers, and then after that we are gonna look at all the different basically the formulas, and the different shapes of a stationary wave which can come in your exams. Okay, so let's get started. Okay guys, so basically let's a quick recap on the definition of a stationary wave. So it is basically a resultant which has formed from two waves, resultant of two waves which are of the same types, have the same frequency, two waves, take it, and both the waves, they must have a few common things, right? I told you they must have the same speed, they must have the same frequency and wavelength, they must be of the same type, they must be traveling in the opposite direction. Okay, traveling in the opposite direction can also be thought of as having a difference of phase angle, meaning their phase angle of they should be out of phase. Actually the phase angle should be difference, should be 180 degrees phase angle difference. बेसिकली एक वेव और दूसरी वेव जो है वो एक दूसरे के रिफ्लेक्शंस होनी चाहिए, ठीक है. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, फिर जब रिजल्टेंट कैसे बनेगी भाई, बाय द ओवरलैपिंग. So overlapping, तो basically that's the superposition, but like these are all the properties that must be the common in all in both the waves. Okay, speed, frequency, wavelength, type, and opposite direction, meaning having a difference of phase angle of 180 degrees. Now guys, basically after this I told you, this was about the stuff that should be common. So when two waves, they travel towards one another in the opposite direction, and they have the same type, frequency, wavelength, and everything, and they overlap with one another at a certain point, and what happens, their displacements, they get added, right? उनके displacements add हो जाते हैं, vertical displacements basically. तो अगर crest के ऊपर crest lie कर जाती है, एक wave की crest के ऊपर दूसरे wave का crest lie कर जाता है, तो वहाँ पर एक resultant बड़ी wave बनती है, right? जो कि इन दोनों के एम्पलीट्यूड्स का सम होती है. एंड अगर क्रेस्ट के ऊपर ट्रफ लाई कर जाता है तो फिर इन दोनों का रिजल्टेंट क्या बनता है, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देती है. मतलब देयर रिजल्टेंस इज़ अ वेव विच हैज़ एन एम्पलीट्यूड दैट इज़ द डिफरेंस ऑफ दीज टू एम्पलीट्यूड्स. ओके, सो ये तो बेसिक बैकग्राउंड था और एक क्विक रिकैप था ऑफ द प्रीवियस लेक्चर. नाउ कमिंग टू द जनरेशन ऑफ अ स्टेशनरी वेव एंड the exam formulas which you guys should know. Okay, let's assume this is our wall, and to this wall is attached a rope, and on one end you guys are holding it in your hand over here. Let's assume right over here. Okay, now as we vibrate the rope up and down, what happens, a wave will be generated, right? Because vibration is the cause of any wave, right? Oscillation will produce waves. So let's assume this green wave is the one which is produced and it goes forward. Let me make it a bit, let's assume this is the wave that is produced and it goes forward, or let me make a shorter wave, a smaller wave actually. So something like this. Okay, two cycles of the same wave. Now as soon as this wave reaches this wall, what would happen, it will get reflected. Okay, reflection will occur, reflection of the wave will occur. And always remember guys, reflection से क्या होता है, basically जो phase angle होता है ना, वो shift हो जाता है. और कितने angle से, 180 degrees से, ठीक है. phase angle shift हो जाता है by 180 degrees. ये भी एक MCQ आ चुका है कि what's the difference between a wave that is reflected and the incident wave. So they are, the difference is having a shift of 180 degrees. So जो reflected wave बनेगी will have a shape that's gonna be exactly a reflection of the
ग्रीन वेव, बेसिकली समथिंग लाइक दिस। अब ये जो वेव आपके पास बन गई ना, जिसमें ग्रीन और वाइट वेव्स हैं, ये बेसिकली एक रिजल्टेंट वेव बनी है, ठीक है। ये एक टाइप ऑफ स्टेशनरी वेव की एक टाइप बन गई आपके पास। अच्छा, मैंने कैसे पहचाना कि ये एक स्टेशनरी वेव की टाइप है? स्टेशनरी वेव, अगर आपको पिछले लेक्चर में शायद मैंने बताया होगा कि स्टेशनरी वेव की टाइप्स को आप ऐसे पहचानेंगे कि उसमें आपको कुछ ऐसे पॉइंट्स नज़र आएंगे जिनकी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट्स होंगी, जिनको हम एंटी नोड्स कहेंगे, ठीक है। व्हाट आर एंटी नोड्स? एंटी नोड्स आर दोज पॉइंट्स विच आर वाइब्रेटिंग विथ मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। दे वाइब्रेट विथ मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट्स, और दूसरे ऐसे पॉइंट्स नज़र आएंगे कि जिनके डिस्प्लेसमेंट जो होगी ना वो ज़ीरो होगी, उनको कहते हैं नोड्स। नोड्स आर दोज पॉइंट्स दैट वाइब्रेट विथ ज़ीरो डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अब नोड्स और एंटी नोड्स जिस किसी वेव में भी आपको नज़र आएंगे ना, वो वेव एक स्टेशनरी वेव होगी, ठीक है। ये एक शॉर्टकट है इसको पहचानने का। अब यहाँ पर इस वेव में मुझे कैसे पता चला कि इसमें नोड्स भी हैं और एंटी नोड्स भी हैं? तो बेसिकली ये वाले जो पॉइंट्स हैं ना, जो कि बिल्कुल मेन पोजीशन पर लाई कर रहे हैं, और ये स्टार्टिंग पॉइंट और ये एंडिंग पॉइंट, ये सारे के सारे नोड्स हैं, ठीक है। ये वाले पॉइंट्स जो हैं ये ना ऊपर जाएंगे और ना ये नीचे आएंगे, बल्कि ये यहीं पर रहेंगे विद ज़ीरो डिस्प्लेसमेंट। दीज आर नोड्स। क्योंकि स्टेशनरी वेव में प्रोग्रेसिव वेव की तरह सारे पॉइंट्स एक ही डिस्प्लेसमेंट के साथ वाइब्रेट नहीं कर रहे होते, ठीक है। जैसे अगर आप प्रोग्रेसिव वेव की एग्जांपल लें, फॉर एग्जांपल ये एक प्रोग्रेसिव वेव है, तो क्या होगा, इसमें हर एक पॉइंट ऊपर नीचे मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट के साथ वाइब्रेट कर रहा होगा। अगर आप इस वाले पॉइंट की बात करें तो ये नीचे जाएगा, फिर वापस आएगा, फिर ये ऊपर जाएगा, फिर ये वापस नीचे आएगा। अगर आप इसकी बात करें तो ये यहाँ मीन पे आएगा, फिर ये नीचे जाएगा, फिर ये ऊपर आएगा, फिर ये वापस से अपनी जगह पे आ जाएगा। अगर आप किसी भी पॉइंट की बात करें इस वेव पर, तो वो एक कंप्लीट वाइब्रेशन के साथ वाइब्रेट कर रहा होगा, मतलब एक कंप्लीट एम्पलीट्यूड के साथ, फुल एम्पलीट्यूड के साथ। और ऑल द पॉइंट्स ऑन अ प्रोग्रेसिव वेव, अच्छा ये एक की पॉइंट है, ये आप अपने पास नोट कर लें कहीं पर, कि ऑल पॉइंट्स ऑन अ प्रोग्रेसिव वेव, ऑन प्रोग्रेसिव वेव्स, ये एक्चुअली एक MCQ आपको नज़र आ जाएगा, ये भी पास पेपर का ही है। ऑन प्रोग्रेसिव वेव वाइब्रेट having the same amplitude या displacement, having same displacement, जबकि स्टेशनरी वेव में this is not true. In case of a stationary wave, different points have different amplitudes. Some have zero amplitude, जो कि जिनको हम nodes कहते हैं, and others have maximum amplitude, मतलब मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट, इन्हें हम एंटी नोड्स कहते हैं। एंटी नोड्स कौन से पॉइंट होंगे? बेसिकली ये जो पीक पे जो पॉइंट है ना, यहाँ से मेन पोजीशन पे आएगा, फिर मेन पोजीशन से नेगेटिव एक्सट्रीम पे जाएगा, नेगेटिव एक्सट्रीम से दोबारा मेन पोजीशन पे आएगा, और मेन पोजीशन से दोबारा पॉजिटिव एक्सट्रीम तक चला जाएगा। बट जो दूसरे पॉइंट्स हैं ना, उनकी जो वाइब्रेशन होगी वो इसकी वाइब्रेशन से छोटी होगी। अब अगर आप इसके एम्पलीट्यूड को देखेंगे ना, तो ये अगर +x है तो बाकी जो वाइब्रेशन होगी ये +x से कम होगी। वेयर एज प्रोग्रेसिव वेव में इसकी भी +x ही होगी, ऊपर नीचे ये फुल +x तक ही जाएगा, और इसकी भी +x होगी प्रोग्रेसिव में। बट स्टेशनरी में हर एक की अलग अलग डिस्प्लेसमेंट होती है। इसको मैं एंटी नोड कह देता हूँ, ठीक है। ये भी एंटी नोड आपका आ गया। जितने भी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट वाले पॉइंट्स हैं ना, वो सारे आपके एंटी नोड्स आ गए। और जिनकी ज़ीरो डिस्प्लेसमेंट है, in short the points which lie on the mean axis, they are all nodes. And by the way, the point from where you are holding the string, the point at which the string is fixed to the wall, these are also points which are fixed, which are not vibrating up and down. These are fixed, that's why they have zero amplitude or zero displacement, ठीक है। They are also called nodes. अच्छा, अब यहाँ पर जो चीज़ आपने याद रखनी है ना, अब एक काम करें, इस पूरी वेव को नोड से एंटी नोड तक आप एक डॉटेड लाइंस बना लें, कि नोड से एंटी नोड, नोड से एंटी नोड। अब जब आप डॉटेड लाइंस बना लेंगे ना, इससे ये वेव काफ़ी इजी हो जाएगी हैंडल करने के लिए।
अच्छा, सो बेसिकली इसमें करना क्या है, आपने एक चीज़ याद रखनी है कि जो नोड से एंटी नोड का डिस्टेंस होता है ना, ये वाला, इसकी एक फ़िक्स वैल्यू होती है, वो होती है लैम्डा बाय 4, लैम्डा डिवाइडेड बाय 4। लैम्डा किसको कह रहा हूँ, ये एक पूरी वेव लेंथ को कह रहा हूँ, ठीक है। आप अगर इस ग्रीन वाली वेव पर फोकस करें तो ये ग्रीन वाली वेव, एक वेव कहाँ कंप्लीट हो रही है, यहाँ पर, राइट, इस थर्ड नोड पर, फर्स्ट नोड से स्टार्ट हो रही है, थर्ड नोड पे एंड हो रही है, और यहाँ से अगर आप वाइट वाली को देखें तो वो भी पीछे की तरफ आ रही है। तो बेसिकली एक कंप्लीट साइकिल यहाँ तक कंप्लीट हो रही है। तो यहाँ से यहाँ तक, मतलब फर्स्ट 3 consecutive nodes, these are your complete wavelength, right? इसमें आप देखें तो ये लैम्डा बाय 4 हो जाएगा, ये भी लैम्डा बाय 4, ये भी लैम्डा बाय 4, ये भी लैम्डा बाय 4। क्यों? बिकॉज वी हैव 4 सेगमेंट्स, 1 2 3 4, मतलब नोड से एंटी नोड का जो सेगमेंट है ना, 4 सेगमेंट्स हैं। तो अगर ये चारों के चारों सेगमेंट्स एक वेवलेंथ के इक्वल है तो एक सेगमेंट की लेंथ लैम्डा बाय 4 होगी, ठीक है। ये बात आपने याद रखनी है कि नोड से एंटी नोड का डिस्टेंस हमेशा लैम्डा बाय 4 ही होता है, मतलब 1/4 ऑफ अ कंप्लीट वेवलेंथ ऑफ अ वेव। नाउ once this is done, the basic concept of stationary waves is made. Let's move on to when a stationary wave is formed. अच्छा, कब प्रोड्यूस होती है, when do we get a stationary wave? तो बेसिकली स्टेशनरी वेव एक ख़ास फ्रीक्वेंसी पे जाके प्रोड्यूस होगी, ठीक है, एट स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसीज ओनली। किसी भी रैंडम फ्रीक्वेंसी पे आपको स्टेशनरी वेव नहीं मिलेगी, मोस्ट ऑफ द टाइम आपको एक प्रोग्रेसिव वेव ही नज़र आएगी, हमेशा स्टेशनरी वेव आपको नहीं मिलेगी। तो वो स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसीज कौन सी है वो इम्पॉर्टेंट है, एंड लेट्स सी व्हाट आर दे, ठीक है। एट स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसीज वी गेट आर स्टेशनरी वेव्स। So basically, now the very first example, assume that this is your string, ठीक है, ये horizontal string जो मैंने अभी बनाई थी, ओके, एक वॉल से लेकर आपके हैंड में थी, ये आपका वॉल है, ओके। assume करते हैं कि the length of the string is L, this entire length is L, okay. Now the very first stationary wave that will be made will have a shape. Before I move on to that, let me tell you something. यहाँ पर ये जो stationary wave आपने बनाई है ना, इसमें ये जो एक segment है ना, ये पूरा, इसे हम कहते हैं loop of a wave। क्या कहते हैं? loop of a wave। इसमें जो ये 2 सेमी सर्कल्स आपको नज़र आ रहे हैं ना, इसे कहेंगे loop of a stationary wave। ठीक है, ये एक टर्मिनोलॉजी आपने याद रखनी है। तो कितने लूप्स हैं इस पूरी वेव में? टेक अ मोमेंट टू काउंट, 1 2 3 4, देयर आर 4 लूप्स इन दिस स्टेशनरी वेव, ठीक है। अब यहाँ देख लेते हैं, जो सबसे पहली स्टेशनरी वेव हमें मिलेगी ना, द वेरी फर्स्ट स्टेशनरी वेव, it will have a fixed shape that would contain only one loop, ठीक है। फर्स्ट स्टेशनरी वेव में सिर्फ एक ही लूप होती है। अच्छा, फर्स्ट स्टेशनरी वेव का मेरा मतलब ये है कि जो सबसे छोटी फ्रीक्वेंसी है जिस पर हमें स्टेशनरी वेव मिलेगी, द वेरी फर्स्ट frequency at which we will get a stationary wave will only have a single loop. Okay, that's a fixed pattern. Stationary wave follows this fixed pattern. So एक loop कैसे बनाएंगे हम? एक पूरी लेंथ पर यहाँ से शुरू करेंगे, बिल्कुल प्रोजेक्टाइल मोशन में जैसे पाथ बनता था ना, पैराबोलिक, उसी टाइप का एक पाथ बना लेंगे। ये कंप्लीट। अच्छा, ये वेव अगर आगे जा रही है तो फिर रिफ्लेक्ट होकर वापस भी आ रही होगी, राइट, तो वो रिफ्लेक्टेड वेव आपने नीचे से बना देनी है। तो बेसिकली 2 प्रोजेक्टाइल की पैराबोलिक पाथ्स आपको नज़र आ जाएंगे। थोड़ा सा क्लियर बना लेता हूँ। ओके, तो अब ये जो पूरी एक लूप वाली वेव बनी है ना आपके पास,
इस पर ये वाला जो पॉइंट होगा जो बिल्कुल बीचों बीच होगा, वेरी सेंट्रल पॉइंट, ये होगा आपका एंटी नोड। ये जो दो एंड्स होंगे ये आपके नोड्स होंगे, ठीक है। द नोड्स विल हैव ज़ीरो एम्पलीट्यूड, ज़ीरो डिस्प्लेसमेंट, एज द एंटी नोड विल हैव मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को हम क्या कहेंगे, एंड एम्पलीट्यूड कहेंगे इस वेव का। अच्छा जी, अब मैंने आपसे क्या कहा था, नोड से एंटी नोड का डिस्टेंस कितना होता है, λ/4। तो यहाँ कितने नोड से एंटी नोड बन रहे हैं, ये पहला नोड से एंटी नोड सेगमेंट बन गया और ये दूसरा एंटी नोड से नोड का सेगमेंट बन गया। तो ये बेसिकली ये पूरी लेंथ जो है ना आपकी, ये λ/4 नहीं होगी, ये होगी 2λ/4, ठीक है। λ/4 को आप 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि अगर आप यहाँ से आप नोड से एंटी नोड की एक डॉटेड लाइन इमेजिनरी बनाएंगे ना, तो ये स्प्लिट हो जाएगा, एंड स्प्लिट होने के बाद ये आपके पास दो सेगमेंट्स बन जाएंगे, ठीक है। हर सेगमेंट आपको पता है कि λ/4 के इक्वल है, तो दो सेगमेंट 2λ/4 के इक्वल होंगे। 2λ/4 लेंथ L के इक्वल थी, राइट। तो मैंने आपको कहा था कि इन द बिगिनिंग दैट द लेंथ ऑफ द एंटायर स्ट्रिंग इज़ अज्यूम टू बी कैपिटल L. Now let's try deriving an equation for the very first frequency at which we will get this type of stationary wave, ठीक है। ये सबसे पहली स्टेशनरी वेव जो हमें मिलेगी उसकी शेप ऐसी ही होगी, ठीक है। वेरी फर्स्ट बेसिक फ्रीक्वेंसी एट विच वी विल गेट अ स्टेशनरी वेव। अच्छा, इफ़ यू कंसिडर वेव्स, व्हाट्स द फॉर्मूला फॉर फ्रीक्वेंसी? फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू स्पीड upon wavelength, right? Speed upon wavelength is the formula for calculation of frequency. Now, what is wavelength equal to in this case? 2, right? You cancel them out. तो lambda की वैल्यू क्या बन जाएगी, 2L. Yes. इसी 2L को आप उठा के यहाँ पर प्लेस कर दें, तो फॉर्मूला बन गया V अपॉन 2 मल्टीप्लाइड बाई L। ये वो फ्रीक्वेंसी है। अच्छा, V क्या चीज़ है, V स्पीड है, ठीक है, स्पीड ऑफ द वेव। एंड लैम्डा क्या है, लैम्डा वेवलेंथ है। वेवलेंथ अगर हम लेंथ की टर्म्स में लिखें तो हो जाएगी 2L। अब अगर आपके पास स्पीड ऑफ दिस वेव होती और ये लेंथ आपने मेजर कर ली होती, आप यहाँ प्लेस करते, आपके पास फ्रीक्वेंसी की एक वैल्यू आ जाती। ये सबसे पहली फ्रीक्वेंसी है जिस पे हमें ये वाली वेव मिलेगी, ठीक है। एक स्टेशनरी वेव मिलेगी जिसका सिर्फ कौन सा लूप होगा, एक ही लूप होगा, ठीक है। ऐसी वेव्स की फ्रीक्वेंसी को हम क्या कहेंगे, इसका एक स्पेशल नाम होता है, इसे कहेंगे फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। अच्छा, इसके 2-3 नाम है बाय द वे। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, इसका दूसरा नाम है फर्स्ट हार्मोनिक, एंड इसका तीसरा नाम है ज़ीरोथ ओवरटोन। अच्छा, बाय द वे ओवरटोन इज़ ऑलवेज वन लेस देन हार्मोनिक, ठीक है। अगर हार्मोनिक फर्स्ट है तो 1 लेस देन 1 क्या होगा, 0, तो ज़ीरोथ ओवरटोन होगा। अब आप अगर इसी को इसके बाद वाली वेव की बात करें, मतलब इसके बाद वाली द वेरी नेक्स्ट स्टेशनरी वेव दैट यू वुड एक्सपेक्ट टू गेट, it would actually have now more than 1 loops. It would have 2 loops now, right? So जो next stationary wave आपको नज़र आएगी ना, उसमें 2 loops होंगे। So this is your wall again. This is your mean axis. Okay, sorry about that. It's your mean axis. And now आपके पास जो wave बनेगी, so let's try making it properly. अच्छा, सो बेसिकली अब ये यहाँ पर मैंने स्केच कर लिया, ठीक है। अब आपके पास ये मीन एक्सिस है, ये आपने वॉल पे फिक्स किया हुआ है इस एंड से। अब आपके पास जो नेक्स्ट स्टेशनरी वेव बनेगी ना, उसमें आपको 2 लूप्स मिलेंगी, ठीक है। तो ये फॉरवर्ड जाने वाली वेव, देन रिफ्लेक्ट होके जो वापस आने वाली वेव होगी, इस टाइप की वेव होगी।
ओके। अब इसकी फ्रीक्वेंसी निकालने की कोशिश करते हैं। बात तो वही होगी, लेंथ तो आपने वही रखी है, राइट, यू यूज द सेम लेंथ फॉर द स्ट्रिंग। Now if you look at this wave, this is actually one complete wave, right? One complete wave का क्या मतलब है कि ये लेंथ किसके इक्वल हो गई, लैम्डा के इक्वल हो गई। या फिर इन अदर वर्ड्स अगर मैं इसको अगेन नोड से एंटी नोड तक डिवाइड करूँ, ये आपको पता है ना कि ये एंटी नोड है, फिर ये नोड है, फिर ये एंटी नोड है, फिर ये नोड है, फिर ये वाला भी नोड है, राइट। सो आपको पता है कि एक नोड से एंटी नोड का डिस्टेंस कितना होता है भाई, लैम्डा बाय 4। कितनी बार आप काउंट करेंगे लैम्डा बाय 4, 1 2 3 और ये 4। सो 4 लैम्डा बाय 4 कितना हो जाएगा, लैम्डा हो जाएगा, राइट। अच्छा, अब अगर आप फ्रीक्वेंसी निकालने बैठेंगे ना तो v अपॉन लैम्डा करना होगा। लैम्डा की वैल्यू कितनी है, लैम्डा की वैल्यू l के इक्वल है, राइट। सो v अपॉन l बन जाएगी। ये आपके पास सेकेंड फ्रीक्वेंसी आ गई, जिस पे आपके पास सेकंड स्टेशनरी वेव आपको मिलेगी, जिसके सिर्फ 2 लूप्स होंगे, ठीक है। 2 मीनिंग 2 लूप्स, 1 मीन्स 1 लूप, 3। अच्छा, आप नाउ यू गाइस कैन गेस योरसेल्फ कि अगर मैं F3 लिखूँगा यहाँ पर कितने लूप्स मिलेंगे, 3 लूप्स मिलेंगे। F4 लिखूँगा 4 लूप्स मिलेंगे। अच्छा, अब यहाँ पर मैं आपको एक पैटर्न समझा दूँ, इसको मैं 2v अपॉन 2l लिख लेता हूँ, ठीक है। मतलब ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। मतलब तो वही है ना, ये दोनों कैंसिल आउट होकर v अपॉन l ही रहेगा। आई हैवंट चेंज एनीथिंग, आई हैव मल्टीप्लाई द न्यूमिनेटर एंड द डिनोमिनेटर बाय 2। अब इससे पहले जो फ्रीक्वेंसी हमारे पास आई थी ना, वो थी v अपॉन 2l। अब जो हमारे पास सेकेंड फ्रीक्वेंसी आई है वो है 2v अपॉन 2l। तो यहाँ से हम एक जनरल फार्मूला निकाल सकते हैं कि आपको अगर कोई स्टेशनरी वेव किसी भी फ्रीक्वेंसी पे फॉर्म करनी है ना, लेट्स से nth स्टेशनरी वेव आपने निकालनी है, मतलब nth हार्मोनिक, तो उस आप n को मल्टीप्लाई कर दे उसकी वेलोसिटी से और डिवाइड कर दें 2l से, तो आपके पास आ जाएगी। ये एक जनरल फार्मूला आप अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, इससे पहले वाली जो आपने ये वाली वेव देखी है, इसमें n की वैल्यू क्या है, n की वैल्यू n क्या है, n इज़ द नंबर ऑफ हार्मोनिक, या फिर n कैन बी द नंबर ऑफ लूप्स इन द वेव, ठीक है। आपके पास 2 लूप्स हैं, n की वैल्यू 2 डाल देंगे यहाँ पर, जैसे मैंने यहाँ डाली है, तो यहाँ पर भी n की वैल्यू क्या डालेंगे, 2। तो ये क्या बन गया, 2v अपॉन 2l। इस तरह से आप फर्स्ट वाली को देख लें, यहाँ पर कितनी लूप्स हैं, एक ही लूप है, तो यहाँ n की वैल्यू बस 1 आ जाएगी, तो बच गया v अपॉन 2l। अगर इसी तरह से आपके पास 3 लूप्स वाली वेव लेंथ होती ना, 1 2 3, फिर वही वापस रिफ्लेक्ट होकर पीछे जा रही होती। तो अब गाइस एक चीज़ याद रखना, अब दोबारा आप काउंट करेंगे ना तो ये पूरा इक्वल होगा। आप अगर गौर से देखें, ये एक वेव यहाँ कंप्लीट हो रही है और आधी वेव ये है, तो ये 1.5 वेव मतलब 3/2 वेव लेंथ लैम्डा के इक्वल है, ये लेंथ के इक्वल होगी। अब गाइस एक बात याद रखना, ये F3 होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर 3 लूप्स हैं। F3 के लिए मैं बस n की वैल्यू क्या डाल दूँ, 3v अपॉन 2l। दिस शुड बी द फ्रीक्वेंसी एट विच आई शुड गेट दिस टाइप ऑफ स्टेशनरी वेव। अब अगर मैं इसी को यहाँ से कंफर्म करना चाहूँ ना, मैं कंफर्म भी कर सकता हूँ। अब इसी लैम्डा की वैल्यू को अगर मैं सब्जेक्ट बना दूँ तो इट बिकम्स 2l अपॉन 3। फ्रीक्वेंसी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, v अपॉन लैम्डा। लैम्डा की वैल्यू इस केस में क्या है, 2l अपॉन 3, v अपॉन ये 2l नीचे आ जाएगा और 3 जो है ये डिनोमिनेटर में है, ये ऊपर चला जाएगा। तो क्या बन जाएगा, F3 की वैल्यू 3v अपॉन 2l, एग्जैक्टली वही बनी है जो यहाँ पर आई थी हमारे पास, ठीक है। तो ये आपके पास थर्ड हार्मोनिक आ गई। अच्छा, अगर ओवरटोन इसका पूछूं तो ये सेकंड ओवरटोन होगा, ठीक है। ये ओवरटोन का मैंने आपसे कहा था कि इट्स ऑलवेज 1 लेस देन द हार्मोनिक। होप दिस मेक्स सेंस, ठीक है। तो जितने लूप्स होंगे वही नंबर आपने इस v अपॉन 2l से मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। तो ये स्ट्रिंग पर स्टेशनरी वेव आपको मिल जाएगी, चाहे फिर वो कितने भी लूप्स हों, 3 हो, 4 हो, 5 हो, 10 हो, कितने भी हो, ठीक है। 10 लूप्स होंगे, यहाँ पर आप 10 रख दीजिएगा, आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। पर 10 लूप्स तक वो कभी नहीं जाते, वो मैक्सिमम 2 लूप 3 लूप तक बस चले जाते हैं। तो ये बेसिकली एक शॉर्टकट, मतलब ये शॉर्टकट फार्मूला है, ठीक है। वेल, ए लेवल्स वालों को मैं अक्सर एडवाइस करता हूँ, क्योंकि आपने यहीं से पढ़ा हुआ है, ये चीज़ इस टाइप की पढ़ी हुई है,
तो अगर आप फार्मूला के पीछे ना भी जाएँ तो कोई इशू नहीं है, आप ये सारा कुछ याद रख लें। और इंटर वालों को मैं ये एडवाइस करूँगा कि ये फार्मूला आप याद रख लें, ठीक है, ये शॉर्टकट आप याद रख लें क्योंकि ये शॉर्टकट आपने पहले से पढ़ा होता है। राइट गाइस, सो आई गेस दिस प्रीटी मच सम्स अप स्टेशनरी वेव्स। अच्छा, बाय द वे, अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि यार स्टेशनरी वेव तो एक ओपन पाइप में भी होती है, क्लोज पाइप में भी होती है। गाइस, ओपन पाइप क्लोज पाइप में बिल्कुल होती है, लेकिन वो आपके सिन बोर्ड के सिलेबस में है नहीं। बुक में आपको ओपन पाइप क्लोज पाइप कहीं मिलेगा नहीं, ठीक है। तो बुक में हाँ, ओपन पाइप क्लोज पाइप की जगह सोनोमीटर है, वो हम अगले वीडियो में करेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइस।